Hello, lovely people out there. I hope you all are doing really good, right? This is my second video on YouTube on my channel, and I can see that I have nearly 17 and 18 subscribers, which is very few. But yeah, I'm good to see that someone is with me for long. And somebody few days back gave me a list of 22 cue cards, which is why I'm making this video. And he asked me for ideas on these cue cards. These were all 22 cue cards and latest cue cards in IELTS. And so I thought that I should make video on this and deliver ideas to all of you who's watching this, my own subscribers as well as new watchers who's coming on the way. Okay, and this person also recommended me that if I'm making YouTube video on these cue cards with their ideas, so I should make video in either Hindi or Punjabi so that everyone can understand well. But I think that everyone can also understand English. That I should make video in Hindi because my reach is pan India, so that everybody who still doesn't know English very well or feel that they can't understand that well, so maybe for them this video is beneficial. Okay, and let's start it right away. Okay, as you can see, these are a few cue cards. The first is describe a street market in your city. Second, describe an argument, and many more. But in this video, I just clubbed 10 together. Okay, although there are 22, and I didn't think of making all together in one video because you might not enjoy watching 1 hour or 45 minutes video. So like this would go like 20 to 30 minutes. Let me see by the end how many minutes it covers. Okay, so let's start right away. I hope you like this table. Okay, so first is describe a street market in your city. अब जो cues हैं इसमें है where is it, what can you buy there, what is it famous for, how you feel about it. मतलब कि वो स्ट्रीट मार्केट है कहाँ, आप वहाँ पे क्या खरीद सकते हो, किस चीज़ के लिए फेमस है और आप इसके लिए क्या फील करते हो. So guys, I'll make this story in Hindi so that everyone at least gets to know how to cook a story, because when somebody speaks in English in front of them, they feel like would they be able to make this good story. So let me tell you, it's really easy. But yeah, for those who are just the starters in English, should be making story in their own language first so that they can understand how a story must be built, because in cue card you have to have a story. Okay, but for others who know English really well, they can just straight away start with their story, right? I believe so. I don't know how you believe. Whatever you believe, you can just comment in the box below. Okay, so let's start. You can just see the ideas written here. You can pause the video and see the ideas yourself. Let me make this story in Hindi now. Okay, तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ स्ट्रीट मार्केट इन योर सिटी. तो मैं जिस मार्केट के बारे में बात करने वाला हूँ वो अमृतसर में है. मैं अमृतसर सिटी से बिलोंग करती हूँ. ये मार्केट गोल्डन टेम्पल के पास है और यहाँ बहुत सी चीज़ें मिलती है. ये वीकेंड में सबसे ज़्यादा बिजी होती है, लेकिन ये 24/7 ओपन रहती है, क्राउडेड रहती है. ये इसलिए क्योंकि गोल्डन टेम्पल पास में है, जो कि एक रिलीजियस प्लेस है, तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है. यहाँ हर एक टाइप की आपको आइटम्स देखने को मिलेगी. कपड़े, जूते, खिलौने, घर की चीज़ें, खाने पीने के लिए बड़े बड़े फूड कोर्ट्स भी हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग. ये एक रिलीजियस प्लेस है, जैसा कि मैंने अभी बताया. तो हर एक एज का ग्रुप यहाँ पे जाता है और माथा टेक कर आता है. और यहाँ इस मार्केट के प्राइसेस भी काफ़ी लो है, तो डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे इस मार्केट में शॉपिंग करने से. इसके पीछे रिलीजियस म्यूजिक भी लगा होता है, क्योंकि जगह जगह गोल्डन टेम्पल की तरफ से स्पीकर्स लगे हुए हैं जहाँ पे कीर्तन चलता है. सो मुझे ये जगह बहुत वंडरफुल लगती है. बहुत शांति है यहाँ पे. हाँ, म्यूजिक अच्छा है क्योंकि बैकग्राउंड स्पिरिचुअल म्यूजिक है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि सभी इस जगह पर जाएं. So guys, I hope you liked my story. Otherwise, you can also make your story. You can just follow the ideas given here. You can have your own ideas. That would be really easy. Okay, but you have to make a practice of preparing the ideas to in the 1 minute given. Okay, so let's move to second cue card. अभी ये second है, describe an argument two of your friends had.
अभी क्वेश्चन है व्हेन इट हैपेंड, व्हाट इट वाज अबाउट, हाउ इट वाज सॉल्व्ड, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। मतलब कब हुई स्टोरी, कब हुई सॉरी ये आर्ग्यूमेंट, व्हेन इट वाज अबाउट, व्हाट इट वाज अबाउट, ये किस चीज के बारे में आर्ग्यूमेंट थी, हाउ इट वाज सॉल्व्ड, ये कैसे सॉल्व हुई, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, तो इसके बारे में आपको कैसे फील हुआ। अभी क्वेश्चन है when it happened, तो you can just see the ideas, you can pause here, and I have gathered all the ideas for you on this story, but let me make a story in Hindi now. अच्छा, तो थी लड़ाई, सबसे पहले एक बहस हुई थी जो मेरे और मेरे कलीग के बीच में हुई थी। मेरा इंग्लिश के रिलेटेड पेज है जो कि इंस्टाग्राम पे है, और मैं चाहती थी कि ये पेज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो। तो एक ऐसा पेज मुझे मिला जिनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा थे, और मेरे कुलीग ने कहा कि आप इनके पेज के द्वारा अपना जो है पेज प्रमोट करवाएं। वो एक दिन का 900 रुपया लेते थे। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने पहले आर्ग्यू किया कि नहीं, कि उनका पेज जो है वो फन रिलेटेड था और मेरा पेज एजुकेशनल है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे या उनकी तरफ से कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले या लर्नेबल पीपल मुझे मिल पाएंगे ताकि वो मेरे पेज से कुछ पढ़ सके या मेरे फॉलोअर्स बन सके। बट स्टिल उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तो होंगे जो बिल्कुल होगा। तो क्योंकि मुझे अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ रखनी थी अपने कुलीग के साथ, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 900 रुपये पे कर दिए प्रमोट करने के लिए, और उन्होंने प्रमोशन लगा दिया। ये प्रमोशन सिर्फ एक दिन का था, और मैंने देखा कि उसमें से मुझे सच्ची में ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, जबकि उस पेज के प्रमोट जो फॉलोअर्स थे वो करीबन 100K थे, और मुझे सिर्फ 200 फॉलोअर्स ही वहाँ से मिल पाए, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं अच्छे से मुझे मिला। सो मैंने इस बारे में उनसे बात भी की, अपने कलीग से बात की कि हमें ये नहीं करना चाहिए था पे, लेकिन उसने इस पर बहस की कि आप खुद अपना काम कर लीजिए, मुझसे मत करवाइए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लेसन मिला, बट हाँ, मैंने कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लिया, क्योंकि मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम से हम डिस्कस करके करेंगे कि ये पेज पे या किसी भी पेज पे प्रमोट करना ठीक भी रहेगा कि नहीं। So guys, I hope you liked this story. See, let me tell you, never ever think that the story should be like very nice, because you're not going there to show off your story. You're basically going there to speak English. But yes, your story should make sense, and your story should be very well picturized across the examiner's mind, right? Okay. All right. Next is describe a natural talent you want to improve, like sports and music. अच्छा, तो अभी इसमें क्या है कि कहते हैं कोई नेचुरल टैलेंट जो आप प्रमोट करना चाहते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स या म्यूजिक। ठीक है, तो भाई 1 मिनट के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि मैं स्पोर्ट्स और म्यूजिक पे कुछ बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं इन बैकग्राउंड से हूं ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि ज़रूरी नहीं है आपने स्पोर्ट्स म्यूज़िक के बारे में ही कहना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है लाइक स्पोर्ट्स एंड म्यूज़िक, यानी कि इनकी तरह। तो आप किसी और के बारे में बोल सकते हो। अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बचपन में डांसिंग की क्लासेस ज्वाइन की थी, तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के बारे में बोल पाऊंगी। तो यहाँ पॉज करके आप इस आइडियाज़ को पढ़ सकते हैं। तो चलो इनसे स्टोरी बनाएं। अभी क्या लिखा है, व्हेन डिड यू डिस्कवर इट, हाउ डू यू वांट टू इम्प्रूव इट, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट। तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि मेरा जो टैलेंट है, जिस टैलेंट की मैं बात करूँगी, वो ना कि स्पोर्ट्स और म्यूज़िक के बारे में है, बट ये डांसिंग के बारे में है। मैंने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था अपने बचपन में काफ़ी फंक्शंस में, जब मेरी मम्मा ने मुझे डांस क्लासेस में लगाया, तो स्कूल में काफ़ी पार्टिसिपेशंस हुई, सिटी लेवल पे काफ़ी पार्टिसिपेशंस हुई, तो वहाँ पे काफ़ी मैंने प्राइजेस भी जीते। अभी मैं चाहती हूँ कि इसको मैं और इम्प्रूव करूँ। हालांकि मैं अभी स्कूल में नहीं हूँ, मैं कॉलेज से भी बाहर निकल चुकी हूँ, और मैं ज्वाइन कर रही हूँ कुछ क्लासेस, लेकिन करेंटली लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस ही अवेलेबल है। मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा कम बेनिफिट होगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि लॉकडाउन के बाद मैं इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकूँ और मैं इम्प्रूव करूँ, और चाहूँ कि मैं कुछ टीवी पे जो काफ़ी आते हैं कॉम्पिटिशन्स, शोज़, उनमें मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ, ताकि इस स्किल को मैं और आगे ले जा सकूँ। मुझे जब भी डांस करने का मौका मिलता है, मैं गाने लगा कर करती हूँ, तो मुझे
बहुत सी एनर्जी, बहुत सी पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं, बहुत दिन अच्छा जाता है, अमेजिंग जाता है और मुझे रिलीफ फील होता है ताकि मैं किसी और अपने काम पे भी अच्छे से कंसंट्रेट कर सकूं। सो गाइस, इस तरीके से आपने ये स्टोरी बनानी है, बेसिकली स्टोरी ही बनानी है और कुछ नहीं। सो फॉर द रेस्ट ऑफ द few cards, let me just read through the ideas for you so that you can make your own stories. Now the second is, sorry, the fourth one. Describe a law on environmental protection. Now, making the ideas for this was really hard for me at first because I felt like, oh my god, I hardly know about any environmental protection laws. And then I came up with this odd even rule, which was implemented in Delhi and first initiated in the USA. So I felt like, yeah, in the 1 minute, when I can't think of any other environment protecting law, I think this is quite benefit because odd even will talk about pollution free area, and somewhere it also benefits in reducing traffic, which once again answer um, freeing from pollution, the noise pollution or the air pollution. So I had a very good idea on this. So I thought I should talk about odd even rule. So let's read. Now the question is what it is. ये क्या है odd even rule? Implemented in दिल्ली. दिल्ली में implement हुआ है. First initiated in the USA. Start हुआ था USA से. Basically देखिए मेरे को नहीं पता कहाँ कौन start हुआ था. मैंने सर्च करके लगा तो जरूर दिया. आप कोई भी कंट्री का नाम ले सकते हैं, ये मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि एग्जामिनर आपकी जनरल नॉलेज चेक नहीं करते. एग्जामिनर्स बेसिकली चेक करते हैं कि आप इंग्लिश में बोल सकोगे नहीं. So even if you say it was first initiated in the let's say Europe, it doesn't matter. Okay, because the examiner is sitting there to assess your English and not your general knowledge. All right, next, how you first learned about it. आपने इसके बारे में कैसे पहले जाना. So 2016 में it was on न्यूज़ में आया and पुलिस was on duty to keep a check कि पुलिस जो है ड्यूटी में लग गई थी चेक करने के लिए कि जो है ऑड इवन तरीके से लोग चल रहे हैं कि नहीं. आप चाहो तो इसमें ऑड इवन रूल का बता सकते हो, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो ऑड नंबर्ड कार थी वो एक दिन चलती थी, इवन नंबर्ड कार्स जो थी वो एक दिन चलती थी, ताकि ट्रैफिक कम भी रहे और उससे जो होने वाला एयर पोल्यूशन है वो भी कम रहे, कार्बन इमिशन जो है वो कम रहे. हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट, किसको बेनिफिट हो रहा है? ऑफ कोर्स ट्रैफिक कम रहेगा तो लोगों को बेनिफिट होगा क्योंकि स्मूथ ट्रैफिक रहेगा, स्मूथ वर्किंग रहेगी रोड की, और इन्वायरमेंट को भी ट्रैफिक जो है काफ़ी बेनिफिट रहेगा. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस लॉ. कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. बेस्ट अप्रोच है ये, क्योंकि ये ना ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में कम छोड़ेगा बल्कि ट्रैफिक को भी स्मूथ करेगा. ठीक है. सो मेक अ स्टोरी डियर. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अ टाउन और सिटी वे यू वुड लाइक टू लिव इन द फ्यूचर. तो फ्यूचर में आप किस टाउन सिटी में रहना पसंद करेंगे? अभी क्वेश्चन पहला है वेयर इज इट. है मेरा आंसर कि अर्बन टाउन में रहना पसंद करूंगी जो मेरे गांव के पास है, नियर माय विलेज, क्योंकि ये एरिया क्या है? पॉश एरिया है. पॉश एरिया मीन्स कि काफ़ी फैसिलिटेटेड एरिया है, यहाँ काफ़ी लग्जरियस लाइफस्टाइल है लोगों की, राइट. हाउ यू नो अबाउट दिस सिटी, कैसे पता है? ऑफकोर्स नज़दीक है, इट्स नियर मी, और मैं नॉर्मली साइकिल राइड करके या स्कूटी राइड करके मैं वहाँ पे चले जाती हूँ एज पास टाइम, यानी कि घूमने फिरने. सो जस्ट वेंडर. ओके, व्हाट इट इज़ फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है? लग्जरियस बंगलोस, बड़े बड़े बंगले हैं, एलिगेंट लाइफस्टाइल है लोगों की, क्लासी लुक है वहाँ की, तो इसके लिए फेमस है. वाई यू वुड लाइक टू लिव देयर, क्यों रहना चाहेंगे? ऑफकोर्स जब क्लासी एरिया है तो जगह बहुत साफ है और वहाँ पे बहुत असेंशियल नॉन असेंशियल यूटिलिटीज सब कुछ प्रोवाइडेड है, तो इससे बेस्ट क्या होगा? सो मैं इसीलिए उस एरिया में जाना चाहती हूँ. ठीक है. ट्राई टू मेक अ स्टोरी गाइस and keep with me till the end of the video. It's just because at the end might be I give you a template to use that you can use to make your story smoother, and then yes, have a story at least which should be coherent enough so that the message is, you know, is gotten across the examiner's mind and it's picturized very well in your listener's mind. You are supposed to get higher scores. Okay, next is describe a puzzle you have played. कोई puzzle describe करिए जो आपने खेली. What it is like, कैसी है वो? Tetris game है basically, मैंने फ़ोन पे खेली. I downloaded it from Google app, okay, which is Play Store.
हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज? पहले तो एट फर्स्ट मीन्स पहले इट वॉज बैफलिंग यानी कि कंफ्यूजिंग थी. आई कुडंट अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज हाउ टू सॉल्व. मेरे को समझ नहीं आया कि इसको सॉल्व कैसे करना है. बट विथ प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस के साथ क्या हुआ, दिस बिकेम हैंडी. मतलब हैंडी मीन्स आसान हो गई. ठीक है, जल्दी मेरे हाथ में आ गई, यानी कि समझ में आना शुरू हो गया कैसे चलती है, ईजियर होगी बेसिकली. ठीक है, सो यू कैन नोट दिस वर्ड डाउन. हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू सॉल्व इट? कितना समय लगता है? वेल, पजल ब्लॉक्स जो है वो उसमें आते रहते हैं. ठीक है, और कुछ नहीं करना, 3-3 का पेयर बनाकर हमें उसे मैच को काटना होता है, स्ट्राइक करना होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेस मिले खाली. सो यू कैन जस्ट रीड दिस. ओके, इट सेज वी हैव टू स्ट्राइक द मैचेस आउट. मतलब जो मैच कर रहा है, वो पेयर कर रहा है, उसको स्ट्राइक आउट कर दो. टू हैव द प्लेस मोर एम्प्टी, ताकि खाली खाली जगह हो. ठीक है, एंड हाउ यू फील अबाउट इट? नाइस है, अच्छी है. क्यों ज़्यादा अच्छी है? बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स माई मेमोरी एंड इनकलकेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ठीक है, मेरी मेमोरी को अच्छा करती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेरे में जो है वो पैदा करती है, मुझे वो स्किल्स मेरे अंदर आती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्राइब अ लाइव स्पोर्ट्स मैच दैट यू हैव वॉच्ड. Well, guys, to be very honest, I never have ever had been to any live sports match, but yeah, I had this annual sports day of my school into my memory, so I talked about this in the ideas here. So it says what it was. What it was. Annual sports day थी मेरे स्कूल में, in my school. Although, हालांकि, although means हालांकि, I used to participate, मैं participate भी करती थी. This time I didn't. इस टाइम मैंने participate नहीं किया. ठीक है, इस टाइम मैंने participate नहीं किया. When you watched it, कब देखा? 2013 में. I was in 12th standard, मतलब मैं 12वीं कक्षा में थी. विंटर सीजन था, क्योंकि वो बेसिकली दिसंबर के मंथ्स में होती है एनुअल स्पोर्ट्स. मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. वेदर वाज वेरी नाइस एंड सनी. वो दिन बहुत अच्छा था, दिन में सूरज निकला हुआ था, तो काफ़ी नाइस वेदर था. What it was like, it always had been amazing and exciting seeing people participating in different kinds of sports, doing race and then earthen pot race and relay race or tug of war. So there are a lot of the kind of activities. Okay, so basically अगर आपको लगे ये आइडियाज कम पड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको पता है क्या करना चाहिए? आपको जो सीन है ना, जो सीन आपके दिमाग में चल रहा है, जिसको आप डिस्क्राइब करो, उसके अंदर जाकर उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दो. सो बेसिकली इस तरीके से हम स्टोरी बना सकते हैं. तो यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हो. ठीक है, देख लीजिए. रिफ्रेशमेंट्स वर गिवन टू पार्टिसिपेंट्स, ये भी है कि पार्टिसिपेंट्स जो है उनको रिफ्रेशमेंट दी गई. ऑडियंस को भी ऑफर किया गया. ठीक है, ऑडियंस को भी ड्रिंक्स के साथ ऑफर किया गया, ईटेबल्स खाने की चीज़ें दी. ओवरऑल नाइस टाइम था वॉचिंग लाइव, तो उसको लाइव देखकर अच्छा लगा. अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब एन आर्टिकल ऑन हेल्थ दैट यू रेड फ्रॉम अ मैगजीन और ऑनलाइन. तो बेसिकली आर्टिकल्स हम काफ़ी सुनते रहते हैं हेल्थ के बारे में, जैसे कि चलो होम रेमेडीज़ हो गई है ना, और मेकअप के बारे में कुछ ना कुछ हो गया, मसाजिंग के बारे में कुछ हो गया. तो ये बेसिकली सुनने में आता रहता है. तो मैगजीन्स वगैरह जो मिलती है ना, तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि मैगजीन है जो डेली न्यूज़पेपर में आती है, तो वो वीकली या वो मंथली आती है, उसमें वो आर्टिकल्स पढ़ने को मिला. तो ऐसी कुछ बातें आप कर सकते हो. अभी क्वेश्चन है व्हाट द आर्टिकल वाज, मतलब वो जो आर्टिकल आपने पढ़ा वो किसके बारे में था, वो टॉपिक क्या था. व्हेन एंड वेयर यू रेड इट, कब पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा. व्हाट यू लर्न फ्रॉम द आर्टिकल, आर्टिकल से पढ़ने को क्या मिला. एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज़ गुड और बैड आर्टिकल, और ये एक्सप्लेन करो कि अच्छा और बुरा क्यों है, अच्छा या फिर बुरा क्यों है. तो क्वेश्चन है व्हाट द आर्टिकल वाज. नाउ यू कैन सी द पॉइंट्स हियर. आर्टिकल फ्रॉम अ मैगजीन कॉल्ड फैशन, मैंने नाम दे दिया, फेक सा फैशन है. लर्न अबाउट होम रेमेडीज, इसमें मैंने होम रेमेडीज के बारे में पढ़ा. टू मेंटेन ब्यूटी एंड हेल्थ, ब्यूटी हेल्थ मेंटेन करने के लिए. और इसमें बेसिकली मुझे पढ़ने को मिला पिंपल वैनिशिंग रेमेडीज, यानी कि पिंपल कैसे गायब करने हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा. और फिर क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर यू रेड इट. तो मुझे लगता है मैंने 2016 में पढ़ा था, जब डेली न्यूज़पेपर आते थे घर पे, तो ये मंथली आता था, तब मैंने पढ़ा था, घर पे पढ़ा था ये मैंने. व्हाट यू लर्न फ्रॉम द आर्टिकल, आर्टिकल से क्या पढ़ा. आर्टिकल से पढ़ा कि जो फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं तो उनको कैसे सही करना है. उस पर ये भी लिखा था कि अपने नाखून कैसे बढ़ाने हैं, और किचन से कैसे वो क्रीम्स वगैरह हम बना सकते हैं ताकि ये सही हो जाए. अब क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट इज़ बैड और अ गुड आर्टिकल. मैं कहूँगी ये अच्छा आर्टिकल था, क्योंकि मैंने ये रेमेडीज़ पे एक्चुअली में वर्क किया और ये बहुत अच्छा रहा. तो ये जो वर्ड है ना वंडर्स, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इंग्लिश शो ऑफ करने के लिए,
क्योंकि क्या लिखा है, द रेमेडीज वर्क वंडर्स फॉर मी, यानी कि रेमेडीज ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया मेरे फेस पे। ओके, नेक्स्ट इज 9th, डिस्क्राइब अ प्लान यू हैव फॉर द फ्यूचर। तो प्लान आपने डिस्क्राइब करना है फॉर द फ्यूचर, एंड यू कैन सी इन द ब्रैकेट्स समथिंग इज गिवन विच had not to be answered, which is not related to work or study, कि वर्क स्टडी के बारे में ना हो। अभी अगर वर्क के बारे में ना हो, करियर के बारे में ना हो, स्टडी के बारे में ना हो, तो क्या प्लान है? तो इस प्लान में अपने ड्रीम बता दो। मुझे अच्छा लगा ये बताना कि मुझे ड्रीम कार, ड्रीम बंगलो चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। अभी पहला क्वेश्चन है व्हाट प्लान इट इज। तो मैंने कहा वेल वी मोस्टली हैव प्लान्स अबाउट फर्दरिंग करियर और स्टडीज। तो मैंने क्या किया, अभी मेरे को पता है कि बाकी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, करियर के बारे में, स्टडी के बारे में हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते थे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही इस लाइन को उठा लिया और उठा के लाइन को थोड़ा सा घुमा के कॉपी कर दिया ताकि थोड़ी सी लेंथ मेरी बढ़ जाए। तो मैंने क्या कहा, वेल वी मोस्टली हैव प्लान्स अबाउट फर्दरिंग करियर। फर्दरिंग करियर मतलब कि करियर आगे बढ़ाने के लिए। फर्दरिंग करियर मीन्स करियर को आगे बढ़ाने के लिए या फिर स्टडी के रिलेटेड होता है। हाउएवर, लेकिन दिस इज ऑफ माई ड्रीम कार एंड हाउस। अब ये किसके बारे में मेरा प्लान है, अपना ड्रीम हाउस लेने के बारे में या ड्रीम कार लेने के बारे में। तो चलो इसमें नाम बता दो, आपको जैगुआर चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए, जो चाहिए नाम बताओ, कहानियां बनाओ बस, और कुछ नहीं है इसमें। फिर है व्हाट यू वुड नीड टू डू टू अचीव इट। अभी आपको क्या करने की जरूरत है, नो डाउट पैसा। पैसा चाहिए, हर एक चीज में पैसा चाहिए, ठीक है। सो ये क्या है, अ लॉट ऑफ मनी ऑफ कोर्स, राइट, ऑब्वियस है। आई वुड हैव टू मल्टीफोल्ड, ये वर्ड लिख लो, थोड़ा काम का आ जाएगा। मल्टीफोल्ड, मल्टीफोल्ड माई इनकम मीन्स इनकम मुझे काफी गुना करनी पड़ेगी, इनकम सोर्स आपको काफी गुना करना पड़ेगा। अभी अगर जैगुआर की बात करो करोड़ों में आती है ना, रेंज रोवर और बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस, आपको भी पता है कितने कितने की पड़ती है, इंटरनेट पे सर्च कर लेना। तो इतने महंगी गाड़ियां तो आम इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है, पर हो सकती है अगर हम मेहनत करें और अपनी इनकम सोर्स को मल्टीफोल्ड करते रहें, राइट। अच्छा, तो हाउ लॉन्ग यू हैव हैड दिस प्लान, कब से है, सिंस चाइल्डहुड, एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज डिफिकल्ट, हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू फुलफिल इट, कितना मुश्किल होगा इस प्लान को करना। सो बेसिकली यही है कि मेहनत करो, स्किल्स पैदा करो, हो जाएगा। सो लेट मी रीड व्हाट आई रोट हियर। आई अंडरस्टैंड द हर्डल्स आई माइट हैव टू जंप। हर्डल्स क्या होता है, वो जो हम स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं होते जिसमें रस्सियां बीच में लगा दी जाती हैं, हम भागते उस रस्सियों से कूदते हैं, तो वो रस्सियां हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स बन जाती हैं, हर्डल्स कहते हैं उनको, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे को समझ आती है, मुझे पता है कि मुझे कितनी ही हर्डल्स शायद जंप करनी पड़ेगी, माइट हैव टू जंप, शायद, माइट हैव, ठीक है, तो इसकी यूजेस का ध्यान रखिएगा। सो माइट हैव टू जंप, मुझे जंप करनी पड़ेगी, बट लेकिन विथ डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्किल्स, मतलब अगर करने की चाह हो, हिम्मत हो और हुनर हो, आई एम श्योर आई कैन रीच माई ड्रीम पोजिशन। मुझे बिल्कुल श्योर है कि मैं अपनी ड्रीम पोजिशन पे, जो ड्रीम लेवल में बनाना चाहती हूँ, उस पर पहुंच सकती हूँ। एंड अफोर्ड द अनअफोर्डेबल्स, ये लिख लीजिएगा आप, बड़े काम की चीज है, अफोर्ड द अनअफोर्डेबल, मतलब जो चीज अफोर्ड नहीं कर सकती थी मैं उसको भी अफोर्ड कर सकती हूँ, इतना मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। So yeah, you are getting vocabulary as well with the idea. So make sure you note down these points if you think that these are worth writing down. Okay. Next is describe a situation you were not allowed to use your cell phone. Well, we all know the places and scenarios where we can't use cell phone, mobile phones, smartphones, whatever the name you give it, right? And I think classrooms could have been the best place that I can expand on my story. Okay, so let's read about it. Where was it? अभी कहते हैं कहाँ पे है, कहाँ कहते हैं, कॉज क्वेश्चन में समझाती हूँ, हिंदी में कहते हैं डिस्क्राइब अ सिचुएशन, ऐसी जगह बताओ, यू वर नॉट अलाउड टू यूज योर सेल फोन, जहाँ पे आपको सेल फोन इस्तेमाल करना अलाउ ना हो, नहीं करने दिया जाए, ठीक है। वेयर वॉज इट, कहाँ पे था, कहते हैं नो डाउट, नो डाउट मतलब कोई, इसमें कोई शक नहीं। प्लेसेस वेयर, places such as, sorry, places such as spiritual, silent seekers or school classrooms mention the prohibition of phones, मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होती है, रिलीजियस प्लेसेस होती हैं ज़्यादातर, या साइलेंट सीकर प्लेसेस होती है जहाँ पे मतलब शांति रखनी पड़ती है आपको, है ना, वो चाहिए वहाँ पे शांति, साइलेंट सीकर्स कह सकते हैं उसको। एंड स्कूल्स होते हैं, स्कूल क्लासरूम होते हैं, ये हमेशा यहाँ ना मेंशन करके रखते हैं, मेंशन उन्होंने लगाया होता है पोस्टर,
that phones are prohibited here. तो प्रोहिबिशन देते हैं, मेंशन द प्रोहिबिशन ऑफ फोन्स. प्रोहिबिशन मतलब नहीं कर सकते आप इस्तेमाल, फॉरबिडन होता है वहां पे, ठीक है ना, मना किया जाता है. सो व्हेन वाज इट, अब आपको कहानी बतानी है ना. कहानी क्या है? इन माय केस, मेरे केस में क्या था, इट वाज इन कॉलेज, कॉलेज की बात थी. एंड द टीचर वाज स्ट्रिक्ट इनफ, और टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट थी. शी नेवर अलाउड एनी डिस्टर्बेंस इन द क्लास. क्लास में तो वो कोई डिस्टर्बेंस कभी अलाउ करती ही नहीं थी, इतनी स्ट्रिक्ट थी. वी ऑल हैड टू बी इन डिसिप्लिन, हम सबको क्या था, डिसिप्लिन में ही रहना था. वाई यू वर नॉट अलाउड? कहते अलाउ क्यों नहीं था? क्लासेज आर फॉर स्टडीज, नो डाउट, क्लासेज है तो मतलब पढ़ने की बात है. फोन्स आर कंसिडर्ड अ कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन. फोन को क्या माना जाता है? डिस्ट्रैक्शन का कारण माना जाता है. डिस्ट्रैक्शन मतलब कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एक तरफ भटक रहे हो, ठीक है ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन का कारण माना जाता है. वट डिड यू वॉन्ट टू डू विद योर सेलफोन? सेलफोन के साथ आप करना क्या चाहते थे उस टाइम? आई वॉन्टेड टू वॉच स्नैप्स ऑन फेसबुक, मतलब मैं फेसबुक पे फोटोज देखना चाहती थी. ये उस टाइम की बात है जब व्हाट्सएप वगैरह भी कम था, फेसबुक ही था वैसे तो कहते हैं आई वॉन्टेड टू वॉच स्नैप्स, मैं फोटोज देखना चाहती थी फेसबुक पे. दैट माई को लर्नर्स, अभी को लर्नर्स क्या है? साथ वाले स्टूडेंट. को मतलब साथ वाले, लर्नर्स मतलब पढ़ने वाले. को लर्नर्स पोस्टेड, जो साथ वाले लर्नर्स ने पोस्ट किया था. सो इट वाज रियली, जस्ट अ मिनट, सो इट वाज रियली अ डिस्ट्रैक्शन. तो हाँ, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन तो था. सोशल मीडिया कैन एनी टाइम अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन. नो डाउट, इसमें भी कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया किसी भी टाइम किसी की भी अटेंशन जो है अट्रैक्ट कर ले. ऑब्वियस सी बात है, आप अगर चाहो भी कि आपने फोन अभी यूज नहीं करना, आप रखना चाहते हो, इंस्टाग्राम में कोई अच्छा सा पोस्ट आ जाए, देखे बिना चलता नहीं है. मेरा तो बिल्कुल भी नहीं चलता. मैं तो, लोग इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं तो मैं तो देखती रहती हूँ. बट हाँ, फिर अपने काम के लिए भी समय निकालना होता है. चलिए, I hope that you liked this video. I hope that these ideas are really helping you out. Okay, जिनको ना एक बार में समझ आया, प्लीज दोबारा लगा कर देखिए, ठीक है. सुनिए दोबारा. होप कि बाकी की चीजें भी आपको अच्छे से समझ आई हो. ये टोटल 10 क्यू कार्ड्स हैं. बाकी के टोटल 12 क्यू कार्ड्स बाकी हैं, बिकॉज द लिस्ट वाज ऑफ 22 क्यू कार्ड्स. तो बाकी के 12 क्यू कार्ड्स बाकी हैं, मैं नेक्स्ट वीक जरूर डालूंगी. और इन केस किसी को फिर भी ना समझ आए लेकिन पसंद आया है कैसे करना है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाइए. ब्रेन बूस्टर्स 2020 करके है, मैं नीचे डाल भी दूंगी, ठीक है. इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप आ सकते हो, पूछने आ सकते हो. ओके guys, let me tell you, I took training from IDP on the band descriptors. Okay, and I would say I'm very well prepared on how to give bands and how examiners do that. And I'm also TIFL TESOL certified. So thank you for watching my video. See you next week.